I'm Ankita and I welcome you to my YouTube channel, that is Tricky Math. And here we will focus on all the chapters from classes 6 to 9. So let's get started with introduction of rational numbers of class 8th. So starting with the numbers. Since our childhood we are seeing the numbers. When our parents used to give us different toys or some fruits, so we started counting. That they asked us that this is 1, then 2, then 3, like this. We started to learn counting. So these counting numbers are known as natural numbers that we have studied in our junior classes. So what are natural numbers? Natural numbers are the numbers, that is the counting numbers starting from 1. We started counting from 1, that is 1, 2, 3, like that we started counting. So these are known as natural number. It moves till infinite, or we can say n numbers. We can take any number till the extent we are reaching, that are natural numbers. Then when we get in our higher classes, we studied about 0. So we started studying 0. So when in the natural numbers we have taken up 0, then that became whole number. So what are whole numbers? Whole numbers were the numbers that are the natural numbers plus the 0 also. So 0, 1, 2, like that till infinite. So the numbers starting from 0 to infinite. 0 से शुरू होकर जो सारे नंबर होंगे वो होल नंबर्स होंगे. 1 से लेकर जब हम शुरू करते हैं नंबर तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. अब इनके बाद में हमने सीखा इंटीजर्स क्या होता है. जब हमारे इस होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दिए, नेगेटिव नंबर्स भी जब इसमें आ गए, सो देन इट वाज इंटीजर्स. सो व्हाट आर इंटीजर्स? So integers are the negative number and the whole numbers. तो negative numbers हो गए -3, -2, -1, 0, 1, 2. इधर भी infinite तक और इस तरफ -infinite तक. लेफ्ट हैंड साइड में -infinity और राइट हैंड साइड में +infinity. मतलब सारे नंबर्स नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी और 0 भी, सब मिलाकर जो नंबर्स होते हैं दे आर नोन एज इंटीजर्स. तो इंटीजर्स की डेफिनेशन होगी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विद 0. नाउ आफ्टर दैट वी विल मूव टू रैशनल नंबर्स. नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? फर्स्ट वी विल सी इट्स डेफिनेशन. नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? सी इन रैशनल नंबर वी कैन सी रेशियो इज देयर. कैन यू सी अ रेशियो हियर? And as you have seen, ratios मतलब when we are comparing two terms, रेशो को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? 2:3. इस फॉर्म में लिखते हैं रेशो को, या फिर हम इसको लिखते हैं 2/3. ये भी फॉर्म होता है रेशो का. सो याद रखने के लिए हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो इस रेशो के फॉर्म में होता है. अब क्या हुई इसकी डेफिनेशन? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स in the form of P by Q. जैसे अभी हमने देखा 2/3 था, वैसे the rational numbers are the numbers in the form of P upon Q. तो rational number कोई भी rational number होगा, they will always be written as P upon Q. Now what is P and what is Q? दोनों वेरिएबल है, तो क्या है? तो P और Q both are integers. अभी हमने देखी integers क्या होते हैं. तो P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स. P कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0. Q ऑल्सो कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. बट वन कंडीशन इज देयर दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0. दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. सो दिस P कैन बी 0 बट Q कैन नेवर बी 0. So this is the definition of rational number, that rational numbers are the numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. We will see some examples. 3/4.
It is in the form of P upon Q. Is it a rational number? So yes, it is a rational number. We can take one more example as minus 4 upon 7. Here P is negative. So as we know, integers can be negative also. So this P upon Q can be rational number because P is negative here. So it is also correct. The number can be like this, 4 upon minus 3. Q can also be negative because we have seen that P and Q both can be integers. So it can also be negative. Other than that, if we see 0 upon 5. Is it possible? So yes, it is also possible because 0 is an integer and it is here in the place of P. But it is not in the place of Q. So it is also a rational number. But if I will write 4 upon 0. As we can see, P here is an integer, but here Q is integer, but it should not be equal to 0, and we can see here it is a 0. So this number cannot be a rational number. So once again, recall the definition. Rational numbers are the numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So moving on to the types of rational numbers. So there are two types of rational number, positive rational numbers and negative rational numbers. So what are positive rational numbers? Positive rational numbers are the rational numbers when the numerator and denominator both are having the same sign. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की साइन सेम होती है, जैसे 3 upon 4, यहाँ पर 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है. या फिर -5 upon -6, यहाँ पर 5 भी नेगेटिव है, 6 भी नेगेटिव है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है. तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन एक जैसा होता है तब वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर साइन ही होना चाहिए, नेगेटिव होगा दोनों में तो भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही कहलाएंगे. ओके, नाउ वी कम टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स. नेगेटिव रैशनल नंबर्स only one, that is numerator or the denominator, either numerator or the denominator's sign should be negative. दोनों में से कोई भी एक की साइन नेगेटिव होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव. लाइक -7/6, यहाँ पर न्यूमरेटर की साइन क्या है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर. या या फिर 5 upon -3. Here denominator is having a negative sign. यहाँ पर डिनोमिनेटर की साइन क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों रैशनल नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर्स. So these are positive having same signs and these are negative having opposite signs or different signs in the numerator and denominator. So now we will be going to see some basic properties of rational numbers. So as we know, P upon Q is a rational number. So if we multiply any number, let's say any number other than 0, if we multiply any number in the numerator as well as in the denominator, so the number obtained will be equal to this fraction only or this rational number only. That means अगर हम इस rational number में, किसी भी rational number में अगर same number numerator और denominator में, 0 को छोड़कर numerator और denominator में multiply करते हैं तो हमको जो number मिलेगा वो उस rational number के बराबर ही होगा. जैसे हम example देखेंगे. This is the first property. For example 2/3, ये हमने एक रैशनल नंबर कंसिडर किया 2/3. अब इस 2/3 में हम अप्लाई करते हैं कोई भी नंबर. लाइक 2/3 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर ही मल्टीप्लाई करना है. वी हैव मल्टीप्लाइड 2 हियर इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर. सो वी गॉट 2 2s 4, 3 2s 6.
दैट इज 4/6 विच मीन्स 2/3। ये जो रैशनल नंबर था हमारा ओरिजिनली वो इक्वल होगा इस रैशनल नंबर के जो हमको नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद मिला। तो पहली प्रॉपर्टी है कि हम कोई भी सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे रैशनल नंबर में कोई फर्क नहीं होगा। द रैशनल नंबर विल बी सेम आफ्टर मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ we'll see the second property. In the second property we are having that if the same number we are dividing in the numerator and denominator then also there will be no change। अगर हम सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टेक अ नंबर 12 by like 18। If I am going to divide 3, the number should be divided, the number which we will divide here should be the common number between both, because we have to divide both the numbers by same digit. Divided by 3, 18 divided by 3, 12 divided by 3 is 4 and 18 divided by 3 is 6. Here we got 4/6. That means this 12/18 is equal to this 4/6. So whenever we are dividing the same number in the numerator and denominator, we will get a number which will be equal to this number. तो कोई भी हम सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमको इक्वल नंबर ही मिलेगा उस नंबर के। ये हो गई दो प्रॉपर्टीज, जिसका मतलब क्या हुआ, सेम नंबर मल्टीप्लाई करो या सेम नंबर डिवाइड करो, the answer will remain same, the both numbers will be equal. So moving on to our next topic, that is rational numbers on number line. What is number line? Number line is an imaginary line where we can represent all type of numbers. Number line एक imaginary line है जिसपे हर टाइप के numbers को हम represent कर सकते हैं। वैसे ही हम rational numbers को भी number line पे represent करेंगे। See, first draw a number line. In our number line, in the center there is 0, and to the right side we are having the positive rational numbers or the positive numbers, and on the left side we are having the negative numbers or negative rational numbers. So let's see one example. If we have to represent 4/5 on number line, this is a rational number, we have to represent this number on number line. First we have to check that the numerator is smaller than the denominator. हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या नहीं। तो if you see that numerator is smaller than the denominator, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है that means कि वो नंबर या वो रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। We have to represent that number between 0 and 1. अगर न्यूमरेटर या अपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से तो नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। तो हमने यह देखा कि ये एग्जाम्पल जो इसमें 4, 5 से छोटा है, दैट मीन्स ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो हमने यहाँ बनाया 0 और 1। अब ये 4/5 यही 0 और 1 के बीच में कहीं रिप्रेजेंट होगा, पर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, हमेशा हम जो डिनोमिनेटर होता है उतने लाइन के पार्ट्स करते हैं। हमारा डिनोमिनेटर है 5, तो 0 और 1 के बीच में हम कितने पार्ट्स करेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे, 5 टुकड़े करेंगे। सो 5 पार्ट्स, दैट इज 1, 2, 3, 4। देखो ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा और पांचवा, दैट इज 5 पार्ट्स वी हैव डन ऑफ द लाइन बिटवीन 0 एंड 1। बट इक्वल पार्ट शुड बी देयर, 5 इक्वल पार्ट्स। जैसे हम फ्रैक्शंस में सर्कल को इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लाइन को हमको इक्वल पार्ट्स में कट करना है। कितने पार्ट्स में, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, डिनोमिनेटर में 5 है तो हम 5 पार्ट्स में कट करेंगे। आफ्टर कटिंग 5 पार्ट्स, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसकी काउंटिंग करके हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। अब 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद होता है 1, तो 1/5। सेकेंड नंबर होगा 2/5, थर्ड नंबर होगा 3/5, फोर्थ नंबर होगा 4/5।
और 1 पे आ जाएगा 5/5, और आपको जैसे पता है कि 5/5 क्या होता है 1, दैट मीन्स हमने प्रॉपर पार्टीशन किए हैं। तो 4/5 हमारा कहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ, यहाँ पर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। अब हम इसी में एक नेगेटिव नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर नंबर है -3/4, -3/4, फिर से हम वही चीज चेक करेंगे। ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। बट जैसे ये नंबर हम देख रहे हैं नेगेटिव है, तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा। 0 और -1 यहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में -1, और -3/4 इस नंबर के बीच में आएगा। जो डिनोमिनेटर होता है उतने हम क्या करेंगे, लाइन के पार्ट्स करेंगे। तो 0 और -1 के हम 4 पार्ट्स करेंगे। ये हुआ एक पार्ट, दूसरा, थर्ड और फोर्थ, ये हो गए 4 पार्ट्स। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट -3/4। तो काउंटिंग हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। सो वी विल काउंट फ्रॉम 0। नाउ वी विल मूव लेफ्ट हैंड साइड। 0 के बाद आए हम -1/4, देन -2/4, देन -3/4, उसके बाद आएगा -4/4, जो कट के क्या हो जाएगा -1। When we'll simplify it will come -1, मतलब हम प्रॉपर प्लेस पर आए। तो कहाँ पर हो रहा है -3/4 रिप्रेजेंट, यहाँ पर। So when we are having negative number, तो we are moving लेफ्ट साइड। 0 से स्टार्ट करेंगे, हम उल्टा इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। काउंटिंग हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, और जब हमको पॉजिटिव है तो हम 0 से राइट साइड में मूव करेंगे। सो ये जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी विल सी व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सी एन एग्जाम्पल लाइक 7/3। नाउ हियर वी कैन सी जो न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर बिगर है डिनोमिनेटर से, ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तब हम क्या करेंगे, तो व्हेन यू सी लाइक दिस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फॉर्म। इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, अपनी पुरानी क्लासेस में सबने पढ़ा है मिक्स्ड इम्प्रॉपर नंबर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2s 6, 7 - 6 1। हाउ वी विल राइट दिस, 2 1/3। जो क्वोशंट है वो यहाँ आएगा, रिमाइंडर अपसाइड और डिवाइजर डाउन साइड। ये हो गया मिक्स्ड फॉर्म। अब जब हमने देखा ये मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका जो होल पार्ट है, मिक्स्ड फॉर्म किस फॉर्म से, दो चीजों से बनता है, एक होल नंबर से और एक फ्रैक्शन से। ये होल नंबर है 2 और 1/3 फ्रैक्शन है। तो होल नंबर 2 है, मतलब ये जो नंबर है वो 2 से थोड़ा सा क्या है, बड़ा, और 3 से थोड़ा छोटा। दैट मीन्स ये वाला नंबर 2 और 3 के बीच में कहीं रिप्रेजेंट होगा। तो हम हमारी नंबर लाइन में अब कहाँ पर जाएंगे, 2 और 3 पर। सो 0 के बाद 1, 2 और 3। सो ये नंबर है जो 2 1/3, वो 2 और 3 के बीच में कहीं पर रिप्रेजेंट होगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने 2 तो देख लिया कि 2 के बाद होगा। अब ये 1/3 जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। 1/3 में जो 3 है वो डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उतने हम पार्ट्स करते हैं। तो 2 और 3 के बीच में हम 3 पार्ट्स करेंगे। ये 1 2 3 पार्ट्स किए, और हमको कौन सा वाला पार्ट रिप्रेजेंट करना है, 1/3, दैट इज फर्स्ट वाला। तो 2 के बाद जो पहला है वो है 2 1/3। ये वाला क्या हो जाएगा, 2 2/3। हमको फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करना है क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 2 1/3। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल सी अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, -5/2।
-5/2 एक नंबर है, नेगेटिव है। हमने देखा इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो हम इसको पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड करके मिक्स्ड में कन्वर्ट करने पर ये आएगा -2 2 ज़ा 4 1/2 2 1/2। यहाँ पर होल नंबर जो है, होल पार्ट जो है वो क्या है, -2, मतलब ये नंबर -2 से थोड़ा और बड़ा है, दैट मीन्स -3 की तरफ है। तो ये नंबर -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ये हो गया -1 -2 -3, ये -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, 1/2 को। 1/2 में डिनोमिनेटर क्या है, 2, दैट मीन्स इस लाइन के -2 और -3 के बीच में हम कितने पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे। ये हो गए 2 पार्ट्स, 1 और 2, और हमको रिप्रेजेंट पहले ही करना है, यही वाला पार्ट रिप्रेजेंट, तो ये हो गया -2 1/2। सो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया नेगेटिव नंबर का जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स. Now the properties of the all operations, that is addition, subtraction, multiplication and division properties, we will see in our next video. So for more videos you can like and subscribe my channel.